بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں یوٹیلیٹی سٹور سے سبسڈی ختم کرنے کی تیاریاں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 3 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ قیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی یوٹیلیٹی سٹورز پر 3 بنیادی اشیاء مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ چینی کی فی کلو قیمت میں 17 روپے کا اضافہ کر دیا۔ چینی 68 روپے کی بجائے 85 روپے کلو دستیاب ہوگی۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا مزید 150 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 800 روپے سے بڑھا کر 950 روپے کر دیا گیا۔ فی کلو گھی کی قیمت میں 90 روپے کا اضافہ۔ 170 روپے کلو ملنے والا دوسرے درجے کا گھی بھی اب 260 روپے میں فی کلو دستیاب ہوگا۔ عوام نے ای سی سی کے فیصلے کی سختی سے مذمت کی۔ شہری کہتے ہیں آٹا، چینی اور گھی بنیادی اشیاء ضروریہ ہیں۔ تینوں اشیاء کی قیمتوں میں یکدم اضافے سے غریب اور متوسط طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ یہ 3 چیزیں جو آٹا، چینی اور گھی، یہ تو روزمرہ کے استعمال ہے۔ اس کے بغیر نہ تو سبزی بنتی ہے نہ کوئی چیز بنتی ہے۔ اگر یہی چیزیں انہوں نے مہنگی کرنی ہے تو اس کا کیا فائدہ یوٹیلیٹی اسٹور کا؟ پھر اس کو بھی بند کر دیں، باہر سے لے لیں جو چیز لینی ہے ہم نے۔ پیٹرول انہوں نے کیا مہنگا کیا، ہر چیز کا ریٹ بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی حالیہ قیمتوں میں اضافے کے بعد مارکیٹ میں مہنگائی کا نیا طوفان ابھی آنا باقی ہے۔ شہریوں نے وفاقی کابینہ سے مطالبہ کیا کہ وہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری نہ دے۔ فیصل آباد کے سہولت بازاروں میں آٹے کی قلت اور دیگر اشیاء نایاب۔ شہری ہاتھوں میں پیسے لے کر مارے پھرنے لگے۔ خواتین بھی رعایتی اشیاء کے حصول کے لیے خوار ہونے لگی۔ دیکھتے ہیں محمد رمضان مرزا کی یہ رپورٹ۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے سہولت بازار قائم کیے گئے ہیں، جبکہ ریاض شاہی چوک سہولت بازار میں آٹے کی قلت ہے۔ ہاتھوں میں پیسے تھامے شہری آٹے کے منتظر ہیں، مگر سٹالز پر آٹا میسر نہیں۔ شدید گرمی اور حبس میں خواتین، مرد اور بزرگ لمبی قطاروں میں گھنٹوں کھڑے ہونے کے باوجود آٹے سے محروم ہیں۔ دوسری جانب ان سہولت بازاروں میں سبزیاں، پھل، گھی اور چینی سرے سے ہی میسر نہیں۔ خواتین اور شہری رعایتی اشیاء کے حصول کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ مل نہیں رہا، صبح سے ہم لائن میں لگے ہیں، ٹھیک ہے نا، 430 روپے کا تھیلا دے رہے، 600 بندہ آتا، 200 تھیلا ہے، کہاں پہ ہم جائیں گے؟ پیسے دے رہے، آٹا بھی نہیں مل رہا۔ صبح سے زیرو خوار ہو رہے ہم یہاں پہ۔ 2 گھنٹے تو کھڑے ہیں، پیسے بھی ہے، آٹا نہیں ہے، نہ پانی اتنے پہنچ رہا، اتنی گرمی ہے، تو 2 گھنٹے کجل کوار ہوندے، کوئی چیز نہیں ملن دی۔ ضلع انتظامیہ میں بازار تو لگوا دیے، مگر اشیاء خورونوش کی فراہمی میں مکمل ناکام ہو گئی ہے۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ بڑی عید سے قبل مہنگائی کا سونامی، پیٹرول کے بعد ایل پی جی کی باری۔ فیصل آباد میں ایل پی جی قیمت میں خود ساختہ اضافہ۔ ڈیلرز نے ایل پی جی کی قیمت 10 روپے بڑھا دی۔ 7 دن میں قیمتوں میں 2 بار اضافہ۔ فی کلو ایل پی جی 150 روپے کی ہو گئی ہے۔ گھریلو سلنڈر 1750 روپے میں بیچا جانے لگا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بڑی عید سے قبل مہنگائی کا سونامی، پیٹرول کے بعد ایل پی جی کی باری۔ فیصل آباد میں ایل پی جی قیمت میں خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ڈیلرز نے ایل پی جی کی قیمت 10 روپے بڑھا دی۔ 7 دن میں قیمتوں میں دوبارہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ فی کلو ایل پی جی 150 روپے کی ہو گئی۔ گھریلو سلنڈر 1750 روپے میں بیچا جانے لگا۔ جنگ میں سیلاب کا خطرہ برقرار۔ دریائے چناب میں تریمو ہیڈ ورکس کے مقام پر پانی کی آمد 62,000 کیوسک اور اخراج 46,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر پی ڈی ایم نے ایک بار پھر اتوار سے طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ دریا میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ دریائے چناب میں جنگ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں تیزی۔ تریمو ہیڈ ورکس پر پانی کی آمد 62,000 کیوسک اور اخراج 46,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر دریائے چناب کے قریبی رہائشی علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا۔ تاہم ضلع انتظامیہ نے تاحال سیلابی صورتحال میں عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے انتظامات نہیں کیے۔ جنگ سمیت بلائی اور وسطی علاقوں میں بارش کا نیا سپیل اتوار سے شروع ہوگا۔ پی ڈی ایم اے نے طوفانی بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا۔ بارش سے دریاؤں میں پانی کی سطح مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے نے اس حوالے سے جنگ سمیت دیگر اضلاع کے ڈپٹی کمشنر کو انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب پیری اربن پلاننگ کی کھلم کھلا خلاف ورزی۔ فیصل آباد کراپ اینڈ گرین ایریا میں بھی رہائشی کالونیز بن گئی۔ حکومت کی جانب سے منظوری نہ دینے کا حکم نامہ جاری۔ ایف ڈی اے نے ڈیولپرز کے قوائف اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔
फैसलाबाद में ज़री रकबे पर रिहायशी कॉलोनियां बन गईं, जबकि हुकूमत ने ग्रीन एरिया पर नई कायम होने वाली कॉलोनियों की मंजूरी न देने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। ऐसे में FDA की जानिब से कॉलोनी बनाने वाले डेवलपर्स के क्वाइफ इकट्ठे करने शुरू कर दिए गए हैं। FDA के मुताबिक तमाम इलाकों के मुतल्लिका इंस्पेक्टर्स कॉलोनियों की तफसीलात जमा करवाएंगे। ज़री रकबे पर मौजूद कॉलोनियों को हर सूरत खत्म करना होगा। FDA के ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट्स मुरतब होने के बाद कॉलोनियों को गिराए जाने का अमल शुरू हो सकता है। अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना एक बार फिर सर उछाने लगा। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में एक मरीज जाँ बहक, 17 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। फैसलाबाद में 12, झंग में 4 अफराद में कोरोना मुस्बत आ गया, जबकि टोबा में 1 केस और चिन्योट में कोई केस सामने नहीं आया। आपको आगाह कर रहे हैं, कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में एक मरीज जाँ बहक, 17 अफराद में वायरस की तस्दीक। फैसलाबाद में 12, झंग में 4 अफराद में कोरोना मुस्बत, टोबा में 1 केस, चिन्योट में कोई नया केस सामने नहीं आया। आपको बताएं कि DHQ हस्पताल टोबा टेक्सिंग के डेली वेजेस मुलाजमीन 9 माह से तनख्वाहों के मुंतजिर मुलाजमीन ने एहतजाजन OPD बंद कर दी है। इसी पर मजीद जानते हैं शाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। टेक्सिंग के DHQ अस्पताल के डेली वेजेस मुलाजमीन तनख्वाहों के हसूल के लिए रुल गए। अस्पताल के 37 मुलाजमीन को गुज़िश्ता 9 माह से तनख्वाहें अदा न हो सकी, जिस पर मुलाजमीन ने OPD को बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमीन का कहना था कि ईद करीब है और घरों में कुछ नहीं, सियासी मुदाखलत की वजह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही। अगर तनख्वाहें अदा न हुई तो तमाम डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे। 9 माह से लेके अब तक हमें सैलरी की कोई अदायगी नहीं की हुई, जिसकी वजह से हमारे घर के चूल्हे बंद पड़े हुए, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया हुआ। यहाँ तक कि बच्चे हमसे रोज़ पूछते हैं कि बाबा ईद के कपड़े कहाँ से लेके आए, हम लोग कहाँ से लेके आए उनके लिए। जब तक हमें तनख्वाहें नहीं मिलेंगी हम एहतजाज जारी रखेंगे, हम काम नहीं करेंगे। हम मॉर्निंग इवनिंग नाइट वाले अपनी मुकम्मल OPD एमरजेंसी बंद रखेंगे। OPD बंद होने के बाद अस्पताल में आने वाले मरीज भी रुल गए। पर्ची ना मिलने पर मरीज बेयारो मददगार जमीन पर बैठे इंतजार करने लगे। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੱਢਣ ਡਏ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੁਲਣਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਪਰਚੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਪਰਚੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਟਿੱਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਾ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬਨਿਆ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ। MS और CO हेल्थ की जान से मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने की यकीन दहानी करवाई गई है। ये डेली वेजेस के तमाम मुलाजमीन DHQ हॉस्पिटल में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं और एक की मुतालबा कि खुदा दारा हमें तनख्वाहें दें ताकि हम अपने घर का चूल्हा आसानी के साथ चला सके। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। शाहिद महमूद की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं बल्दियाती इदारे क्यों बहाल नहीं किए। हाई कोर्ट ने हुकूमत का जवाब मुस्तरद कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर्स को ताहुकुम सानी फंड्स की अदायगी से रोक दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया। बहाली की समरी भी मंगवा ली और आइंदा समाअत 19 जुलाई को होगी। ये रिपोर्ट देखते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने बल्दियाती नुमाइंदों की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों की जानिब से चौधरी इमरान रजा चद्दड़ एडवोकेट समेत दीगर वकला पेश हुए। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जावेद पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट में इसी केस के मुतालिक तौहीन अदालत की दरखास्त पर पहले ही नोटिस जारी हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने इस केस में नज़रसानी की दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है। पंजाब हुकूमत अदालती हुक्म पर मनवन अमल दरामद कराना चाहती है। जस्टिस आयशा मलिक ने पंजाब हुकूमत का जवाब मुस्तरद करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद बल्दियाती इदारे बहाल क्यों नहीं किए जा रहे। अदालत ने 19 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात को वजाहत समेत तलब कर लिया। दूसरी जानिब बल्दियाती इदारों के एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए नीलामी के जरिए दरखास्तों पर भी समाअत हुई। जस्टिस आयशा मलिक ने मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों ने हुकूमती जवाब पढ़ने के लिए मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आपको बताएं कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। SHO थाना समनाबाद की तनख्वाह बंद करने का हुक्म दे दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद नदीम अनवर चौधरी ने SHO की तनख्वाह बंद करने का हुक्म दे दिया। सरकारी बनाम मुजम्मिल वगैरह के नाम से कत्ल केस की समाअत में अदालत ने SHO थाना समनाबाद को सरकारी गवाहान अदालत में पेश करने की हिदायत की थी, मगर SHO की जानिब से सरकारी गवाहान को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। आपको बताएं कि जंग में इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडियां तो सज गईं मगर आवाम की तवज्जो हासिल न कर सकीं।
नामुकम्मल इंतजामात, मंडियों में जमा बारिशी पानी ताहाल ना निकाला जा सका। व्यापारी भी डट गए, मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी सेल पॉइंट्स बनाकर डेरे जमा लिए। मुबश्शिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। बारिश का पानी माहिर ग्राउंड, जामिया चौक और नवाजाबाद मवेशी मंडियों में ताहाल जमा है, जबकि निकासी आब न होने के बायस ताफून फैल गया है। ऐसे में शदीद गर्मी और हब्स के स्थायी व्यापारी परेशान दिखाई दिए। उनका कहना है कि इंतजामात न होने के बराबर हैं। पानी वगैरह इतना निज़ाम खराब है, जितने भी जानवर आ रहे हैं वो बाहर रोड पे खड़े कर रहे हैं, इधर अंदर नहीं ला रहे। पानी अंदर बहुत है, इसलिए बड़े मसला बन रहा है। गरीब बंदा तो ये कुर्बानी के लायक वो तो आता ही नहीं ना, वो बड़े जानवर पे भी नहीं हिस्सा रख सकता, वो उसका भी रेट बहुत ज्यादा है। इंतजामात गैर तसल्ली बख्श होने के बायस व्यापारी शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर गैर कानूनी सेल पॉइंट्स बनाए बैठे हैं, जिससे ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर और जगह जगह गंदगी भी फैल गई है। न कोई जानवरों के लिए सहूलत दी गई है, न कोई इंतजामात किए गए हैं। हमारी इल्तिजा है कि बस पानी की निकासी का इंतजाम किया जाए, ग्राउंड को खुश्क किया जाए और कोई ऐसा इंतजाम किया जाए छाँव का भी, और जहाँ गाहक भी आसानी से रहें और हम भी व्यापारी भी और जानवर भी आसानी से रहें। व्यापारियों का कहना है कि इंतजामात न होने और शहरियों की अदम दिलचस्पी के बायस मुख्तलिफ मुकामात पर पॉइंट्स बनाए हैं। शहरियों के मुताबिक कुर्बानी के जानवरों की कीमतें इमसाल ज्यादा हैं, तहम उम्मीद है कि बड़ी ईद के आखिरी अयाम में कीमतें कम होंगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। चौबा सिंह में मवेशी मंडियां तो सज गई, लेकिन खरीदार ना होने के बराबर हैं। शहरी रेट ज्यादा होने का शिकवा करने लगे। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी में जानवरों का इजाफा होने लगा, लेकिन कीमतें ज्यादा होने से खरीदारों का रश ना बढ़ सका। शहरी कहते हैं जानवर तो हर सूरत खरीदना है, लेकिन कीमत ज्यादा होने की वजह से परेशानी का सामना है। आने वाले दिनों में कीमतें कम हुई तो जानवर खरीद लेंगे। अभी हम आए हैं तो बकरों को जो रेट्स हैं बहुत ज्यादा है, तो कुव्वत खरीद जो है वो लोगों की बहुत कम है। इसमें जो बकरा पिछले साल 30-35 हज़ार का था, वो अभी जो मांग रहे हैं वो 50,000 के करीब मांग रहे हैं। बकरे इतने महंगे हैं कि बाहर में पैसे निकालने को दिल नहीं कर रहा। ये छोटा सा बकरा है, इसका 50 मांग रहे हैं, कुछ जो 17 है उसका भी 70-80 मांग रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि बस गरीब आदमी क्या करे, कुर्बानी करे या बच्चों को पाले। दूसरी जानब व्यापारी जानवरों की कीमतें कम करने को तैयार नहीं। कहते हैं महंगाई की वजह से हर चीज महंगी हो चुकी है। हमने पूरा साल जानवर पर मेहनत की होती है, सिर्फ मेहनत की ही कीमत वसूल करते हैं। तोबा टेक आपको बताएं कि राजनपुरी बकरे जहां खूबसूरती में अपनी मिसाल आप, वहीं उनके नखरे भी वखरे हैं। जंडावाला में राजनपुर से आए बकरे सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस अली। ईद कुर्बान की आमद है। जंडावाला मवेशी मंडी में राजनपुर से आए बकरे सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। दराज कद, सफेद रंग और स्याह आंखों वाले राजनपुरी बकरों ने मंडी की रौनक में इजाफा कर दिया। शहरियों की कसीर तादाद खूबसूरत बकरों को देखने उमड़ आई। बकरों के मालकान का कहना है कि राजनपुर के बकरों की देखभाल बेहतरीन अंदाज से की जाती है। खुसूसी चारे के साथ साथ दूध भी पिलाया जाता है, मगर शहरी बकरों की कीमत बहुत कम लगा रहे हैं। खर्चा ये 2 माह का जब बच्चा होता है, जब इनको बड़ा करना है तो 6 से 7 लाख रुपए इन पर खर्चा आ जाता है। जो गंदम पहले 1400 रुपये मन खिलाते थे, अब 2000 रुपये मन है। जैसे बच्चे बीमार होते हैं ऐसी उनकी हिफाजत है, ऐसी इनकी हम रखते हैं जानवरों की, ठीक है। और बच्चों से ज़्यादा बढ़कर इनकी ख्याल रखते हैं, कोई कान से दागी ना हो जाए, लत से ना हो जाए, पेट से ना हो जाए। हम इनकी 1,40,000 रुपये मांग रहे हैं। ये बकरा देख ले, खूबसूरत, राजनपुर से आए हम लोग। जंडावाला मंडी से तवील सफर करके आने वाले राजनपुर के बकरों के नाजो नखरे भी काबिले दीद हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। जिला फैसलाबाद के मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त जारी। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल ने पाक आर्मी के जवानों के हमरा दौरा किया। ईद उल अज़हा की आमद के पेश नज़र मवेशी मंडियों में रश बढ़ रहा है। इंतजामात का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल ने पाक आर्मी के अफसरान के हमरा मवेशी मंडी का दौरा किया, जबकि व्यापारियों और खरीदारों से बातचीत भी की। इस मौके पर लोकल गवर्नमेंट महकमा सेहत, महकमा लाइफ स्टॉक का अमला भी मौजूद था। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने हिदायत की कि सफाई का खास ख्याल रखा जाए। वेटरनरी माहिरीन ने हिदायत की है कि जानवरों की सेहत और खुराक का खास ख्याल रखा जाए।
आपको बताएं कि फैसलाबाद के रिहायशियों के लिए खुशी की खबर, लोड शेडिंग से निजात के लिए स्काई इलेक्ट्रिक कंपनी ने सूसा रोड ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। देखिए इमरान असलम की रिपोर्ट। स्काई इलेक्ट्रिक ने जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल सोलर एनर्जी का शाहकार मुतारफ करा दिया। इंजीनियर्स और सरमायाकारों ने स्काई इलेक्ट्रिक की सोलर प्रोडक्ट को सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए अहम शाहकार करार दिया। इस मौका पर स्काई इलेक्ट्रिक कंपनी के CEO उस्मान सैफुल्लाह खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में हमारी कंपनी जदीद टेक्नोलॉजी के सोलर बना रही है। मुल्क में तवानाई के बहरान का वाहिद हल सोलर सेक्टर को अहमियत देना है। हमारा जो स्काई इलेक्ट्रिक सोलर सिस्टम है ये सोलर एनर्जी से, शमसी तवानाई से इंशाल्लाह आपको घर में 24 आवर्स आपको पावर देता है। इसमें हमारी अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, लिथियम आयन बैटरीज हैं और हमारा मंशूर एक बड़ा सिंपल मंशूर है कि पाकिस्तान के हर घर हमने इंशाल्लाह बिजली पहुंचाना है और ऐसे तरीके से पहुंचाना है कि जो माहौल हम अपने आने वाली नस्लों के लिए छोड़ेंगे वो इंशाल्लाह आलूदगी से एक पाक माहौल होगा। स्काई इलेक्ट्रिक के रीजनल डायरेक्टर सुहेब सपरा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्काई इलेक्ट्रिक की 5 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक सोलर लगाने की कैपेसिटी मौजूद है। घर के ऊपर जो सोलर सिस्टम सारिफ एक लगाता है वो ना सिर्फ अपने लिए बिजली बनाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी वो अपनी डिस्को के थ्रू ग्रिड को वापस भी बेचता है। तो माशाल्लाह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कस्टमर्स हैं जो ना सिर्फ अपने लिए एक क्लीन एनर्जी मुहैया कर रहे हैं, उसके अलावा अपनी जो सोसाइटी है उसके अंदर भी कंट्रीब्यूट कर। वाज़ह रहे स्काई इलेक्ट्रिक कंपनी के फैसलाबाद में 10वीं ब्रांच का इफ्तिताह किया गया है। मौजूदा तवानाई के बहरान में स्काई इलेक्ट्रिक की जानिब से जदीद सोलर की इजाद किसी शाहकार से कम नहीं। कैमरामैन मुअज़्ज़म के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। साल 2020-21 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के 15 सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल सेक्टर ने तरक्की की है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी गई। 15 सेक्टर्स में से 10 सेक्टर्स बेहतरी में रहे जबकि 5 सेक्टर्स मनफी कारकर्दगी दिखा सके। गुज़िश्ता माली साल मंदी का शिकार टेक्सटाइल सेक्टर ने 15% बेहतरी दिखाई। रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में टेक्सटाइल सेक्टर की रिपोर्ट मनफी 10.72% थी जबकि माली साल 2020-21 में टेक्सटाइल सेक्टर 15.64% से ऊपर नजर आया। गुज़िश्ता महीने की निस्बत टेक्सटाइल सेक्टर 12.37% बेहतरी में रहा। सालाना कारकर्दगी में टेक्सटाइल सेक्टर गुज़िश्ता माली साल से 4.3% ऊपर रहा। दीगर 10 करने वाले सेक्टर्स में फूड, बेवरेजेस और टबैको, पेट्रोलियम मसनूआत और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं जबकि केमिकल्स, नॉन मेटालिक, मिनरल प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, आयरन, स्टील, फर्टिलाइजर और पेपर एंड बोर्ड के शोबे शामिल हैं। 5 खसारे में रहने वाले सेक्टर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, लेदर, इंजीनियरिंग, रबर और लकड़ी की मसनूआत शामिल हैं। FBI ने फैसलाबाद में टैक्स दहिंदगान को 42 अरब के सेल्स टैक्स रिफंड्स जारी किए। ज्यादातर रिफंड्स जीरो रेटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेल्स टैक्स की मद में जारी हुए। फैसलाबाद में माली साल 2020-21 में टैक्स दहिंदगान को 42 अरब रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड्स जारी हुए। जीरो रेटेड कैटेगरी में रजिस्टर्ड सनतों को तरजीही बुनियादों पर सेल्स टैक्स रिफंड्स जारी किए गए। FBI के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर क्लेम शुदा रिफंड्स पर बरवक्त प्रोसेसिंग के लिए फास्टर सिस्टम बनाया गया है। ऑनलाइन सिस्टम के जरिए रिफंड्स केसेस पर 72 घंटे में इब्तदाई वर्किंग मुकम्मल की जाती है। टैक्स दहिंदगान को बरवक्त रिफंड्स की अदायगी से माशी सरगर्मियों में बेहतरी आई है। दूसरी जानिब जिला जंग गुज़िश्ता साल रेवेन्यू अहदाफ हासिल करने में नाकाम। DC ने तमाम रेवेन्यू अफसरान को आइंदा माली साल के अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर ने नए नंबरदार भर्ती करने के लिए 100% रेवेन्यू टारगेट पूरा करने का हदफ दे दिया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जिला झंग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टारगेट पूरा करने में नाकाम। झंग में डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन मीटिंग का इनेकाद हुआ जिसमें माली साल बराए 2020-21 का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि जिला में गुज़िश्ता साल की निस्बत म्यूटेशन में 85% जबकि ज़रूरी टैक्स में 69%, आबियाना की मद में 65% से जायद रिकवरी की गई जबकि स्टाम्प ड्यूटी की मद में सिर्फ 61% रिकवरी हुई जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 77% कम है। जिला झंग को 1540 मिलियन का टारगेट दिया गया था जिसमें 1118 मिलियन हासिल किया गया। उधर डिप्टी कमिश्नर ने आइंदा रेवेन्यू अहदाफ को पूरा करने की ठान ली। नए भर्ती होने वाले नंबरदार अपने मौजे का रेवेन्यू 100% इकट्ठा करवाएंगे जबकि मुतालिका पटवारी से आबियाना और ज़रूरी टैक्स इकट्ठा करने की रिपोर्ट भी DC ऑफिस में जमा करवानी पड़ेगी। टैक्स वसूली 100% होने के बाद ही नंबरदार को सरकारी रकबा अलॉट किया जाएगा। हर मौजा पर एक नंबरदार को 12.5 एकड़ रकबा अलॉट होगा।
DC फैसला आबाद मोहम्मद अली ने मुख्तलिफ बैंक और पोस्ट ऑफिस का दौरा किया। स्टाफ की वैक्सीनेशन न होने पर बरहमी का इजहार किया। DPO चिन्योट बिलाल जफर के ज़ेरे सदारत पुलिस अफसरान का मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी के मुतालिक जायजा इजलास हुआ। उधर टोबा टेक्सिंग में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तौसीफुर रहमान के ज़ेरे सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने सर्कुलर रोड पर कायम हबीब बैंक, UBL और MCB के बाद स्टाफ की वैक्सीनेशन ना होने पर बरहमी का इजहार किया। DC ने बैंकों के बाहर नो वैक्सीनेशन नो सर्विस के बोर्ड्स आवेजा करने की भी हिदायत की, जबकि बैंक सारिफीन के मोबाइल नंबर पर 1166 पर मैसेज करके वैक्सीनेशन कराने की तस्दीक की। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली जनरल पोस्ट ऑफिस भी गए और ताहाल वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। DPO चिन्योट बिलाल जफर की ज़ेरे सदारत पुलिस अफसरान का मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी के मुतालिक जायजा इजलास DSPs और SHOs ने शिरकत की। DPO ने SHOs को जिला भर में कायम 4 मवेशी मंडियों के अतराफ फैसलाबाद में खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम के तहत हफ्ता शजरकारी जारी। कमिश्नर साकिब मन्नान, एडिशनल कमिश्नर DG FDA, CEO हेल्थ, DHO और दीगर ने शिरकत की है। इसी पर मजीद तफसीलात से बात करेंगे। इस के फैसलाबाद में खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम के तहत हफ्ता शजरकारी जारी। कमिश्नर साकिब मन्नान, एडिशनल कमिश्नर DG FDA, CEO हेल्थ, DHO और दीगर ने फॉरेस्ट में पौधे लगाए। हफ्ता शजरकारी के तहत पौधे लगाने का सिलसिला जारी है। महकमा जंगलात की जानिब से गटवाला पार्क में मियावाकी फॉरेस्ट में पौधे लगाए गए। 2 कनाल अराजी में खास किस्म के 2000 से जायद पौधे लगाए। फॉरेस्ट अहम कड़ी है शजरकारी की उस मुहिम की जो इस मानसून में चल रही है। शजरकारी मानसून की मुहिम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़ार साहब और मिनिस्टर फॉरेस्ट इनकी हिदायत के मुताबिक शुरू की गई है। कमिश्नर साकिब मन्नान ने पौधा लगाया और जंगलात की अहमियत बारे आगाह किया। DG FDA डॉक्टर फैसल अजीम, एडिशनल कमिश्नर इमरान रजा अब्बासी, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर वजीहुद्दीन, CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा और डॉक्टर बिलाल अहमद ने भी पौधा लगाया। कमिश्नर ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाना है तो जंगलात और पौधे लगाना बेहद जरूरी है। हर फर्द 2 शजर पर अमल करके ही आलूदगी पर काबू पा सकते हैं। हफ्ता हम ये वाला मना रहे हैं, ये जो खिदमत आपकी दहलीज पे प्रोग्राम है उसके हवाले से हमने 55,000 जो दरख्त लगाने हैं। इसमें पहले भी हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हुए हैं। आज का जो आइडिया था उस पर मैं चंद जुमले अर्ज कर देता हूँ। एक तो ये है कि सारे महकमे यहाँ पर आए हैं। हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट भी संजीदा है और हम भी बहुत संजीदा हैं इस काम में। गटवाल पार्क में शजरकारी मुहिम के मौका पर दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।